I hope that all of you have the calculator. So I'm going to open the calculator on my screen as well, so that you can have the better access to the knowledge which we are going to discuss today. So Bismillah Rahman Rahim. You can see that we have started the past paper 2 May June 2023, 2 days back. We are taking a lot of time to complete paper 2 because it is important to discuss each and every case of the paper. Okay. So now you can see one thing. This is question number 9 in front of you. We are going to solve this question, but before that, we are going to read the question and analyze and how to read a particular trigonometry question. They say that A, B, C are points on horizontal ground. Okay. So the bearing of B from A is 0.72. So it means that in normal English, it is look at B from A, So it means that look at B from A, this angle is 72 degrees. Okay, the bearing of C from A is, it means that look at C from A is 205. It means that look at C from A, it means that this angle is total, this red angle is total 205. So how much this angle would be? This angle would be 205 minus 72 degree. So this angle is 133 degree in originality. Now, that is why the reading the question is very much important. The examiner is asking you to calculate the length of BC. कि आप BC की लेंथ को कैलकुलेट करो. एग्जामिनर आपसे ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जाम पूछता है. Now you have to understand one thing, that this shape in front of you is a triangle. Now, before going to select a proper formula for that, try to redraw the shape one more time in order to have a better understanding that what kind of triangle is this. You can see one thing, that this triangle is the example of not a right angle triangle, because it is having an obtuse angle of 133 degree. So now you have two choices, sine rule and cosine rule. So now I got the idea that I have one side available, which is small c. I have this side available, which is small b. Why this is small c? All of you know this already, is that angle C is facing this side, so this is small c. Angle B is facing this side, so this is small b. And this angle is angle A, means that BC is small a, which is missing in the question. So we are going to find out the small a. So first of all, you need to understand and how to develop a particular cosine rule. So I'm going to develop the cosine rule for small a. So it would be a square equals b square plus c square minus 2 bc cos of a. Now you can see one thing, that a square is my bc. So bc length square is equals to b square, which is 95 square. 95 square. Walaikum assalam. 95 square plus 170 square minus 2 into 95 into 170 into cos of 133. Now we are going to find out BC, not square, BC square. So BC would be equals to square root of the right side. So 95 square. No need to do any calculations because calculator is allowed. 95 square plus 170 square minus 2 into 95 into 170 into cos of 133. Now the game is of the calculator. Just see, this is square root 95 square plus 170 square minus 2 bracket 95 bracket 170 bracket close, multiply with cos of 133 and close the bracket after writing sine, cos or tangent in calculator. So I wrote cos 133 because this is cosine rule. So pressing equals to, I got the idea that the answer for BC is 244.85. Now, if 3 significant figure is the rule, so 3 significant figure rounding off, so it would be 245. So answer for BC is 245. Now I got the idea that that's how we are going to find out the length of BC. Once you're done with the particular part, please do write the answer on your diagram above, because examiner is going to ask few questions, might be after this part. Then find the bearing of A from C. So it means that look at A,
from C. So at C, I need a north. So let's go upwards. Now you can see that this is north. Now this arrow would be the north. Would be the north. I want to look at A from C according to the bearing concept. Assalamu alaikum, I sir. could move only clockwise. Walaikum assalam. So this angle is my bearing. So how can I get this angle? Because I know angle properties. How? Because I can find out this angle, that how much this angle is. I know that the red angle is 205. So the green little part on the right side is 360. It is 360 minus 205. So 360 minus 205. So the answer is 155. So this is 155. So the bearing would be what? Bearing would be 180 minus 155. So 180 minus 155 is 25, which is 025. The bearing of A from C is only 25 degrees. So bearing is always 3 digits. How I found it, please pay attention. If you do not understand, find the bearing of A from C. It means I'll look at A from C. So standard C, make a north and start moving clockwise. So this is the angle. It means that if you're watching this line, it means that you're watching A. I had this angle available in the question, 205. I know that angle at a point is 360. So 360 minus 205 is 155. So we know that co-interior angles of the parallel line sum equals 180. So 180 minus 155 is 25 degrees. So this answer is 25. So the bearing is 3 digits. So we are allowed to write 025. Okay. So that is what the part A and part B is. So let's proceed the question now. Now the examiner is saying in the next part, that the point D lies on a horizontal ground. It is due south of A and due east of C. Due east of C. Show that A to D, this is equals to what? This is equals to 86.1 meters. So now, beta, we know this idea from the question. This is the continuation of this diagram. This is the continuation of this diagram. I got the idea that this total angle here was 205. So I know that everybody that this little angle is 180 degree because angle at a straight line is 180 degree, 180 degree. So 205 minus 180, this little part is 25 degree. This little part is 25 degree. Examiner is asking me finding AD. Now A to D is the part of this rat which is right angle triangle. Name the triangle, extract it out AD, and that is C. This is 95 and this angle is 25. Examiner is asking you to find out the unknown side, which is small c here. Got it? So now we have the three formulas, which is some people have curly brown hairs through proper brushing. So that is SPH, curly brown hair, cos CBH, tangent through proper brushing. I have the angle available. 25 is available in right angle triangle. Side opposite to the 25 is perpendicular. This is base and this is hypotenuse. So hypotenuse is also available. I want to find out base, which is small c. So Assalamu alaikum, sir. I would be using walaikum assalam. I would be using cos theta. So I got the idea that cos theta is cos 25 is equals to base, which is AD, divided by hypotenuse, which is 95. So AD is equals to 95 times cos of 25. Let's check 95 times cos of 25. Close the bracket. Pressing equals to, it is 86.01. So A to D, it is equals to 86.099. So till one decimal place, according to the, this is the specific rounding off because examiner is giving you the instruction that you are bound to round up the answer till one decimal place here. The first decimal place is 0 and after 0 there is a 9. So I have to add 1 to the 0. So it would be 86.1. So AD is equals to 86.1. That is what shown is. So we were requested to show that and we showed it. Understood everybody or not? Then they say that the point X is at the top of vertical mast A and vertical mast A,
and the angle of elevation of X from B is 7. So what the examiner is asking you, this is the 3D dimension. So kindly please pay attention because I'm going to give you a very short understanding on this thing. So please pay attention, everybody. They say that a point X is at the top of vertical mast A. So it means that there is a line which is AB, and there is a vertical mast which is right above A, and the name of that particular point is X. The angle of elevation of X from B is 7 degrees. It means that if you look at X from B, it is 7 degrees. This is 7 degrees. So we have AB available, which is 170. Calculate the angle of elevation of X from D. We have to calculate from D. So what I'm going to do in this part, I'm going to find out the height of the mast, that what height of the mast is by using this triangle. Once I have the height of the mast, what I'm going to do is I am going to find out with the help of this triangle, and the second triangle in front of me would be A and D, and the vertical mast is at A like this. So then I am going to find out this angle, which is the angle of elevation from D. So फिर मुझे यहाँ से D मिलेगा, ठीक है। AD की वैल्यू भी हमारे पास है 86.1, ठीक है। Okay, now let's find out the height of the mast. First of all, this is first step, finding height of the mast. Okay, so let's do that. So it's a right angle triangle. Side opposite to the angle is perpendicular, and this is base. So it means that tangent theta is going to play its role. So tangent 7 is equals to perpendicular, which is AX, and the base is 170. So AX is equals to tangent 7 multiply with 170 multiply with tangent 7 multiply with tangent 7. So 170 multiply with tangent 7, close bracket, pressing equals to 20.9. So it is not my final answer, Ramin. So I'm going to write 20.87 like this. Okay, this is not my final answer. So I have to be very extra much careful to get the accurate answers. So I got the idea that the height of the mast is 20.87. Now I have to stand at D. मैं D पे खड़ा होके X को देखना चाहता हूँ, तो मुझे X को देखने के लिए उसकी हाइट चाहिए थी, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया B पे, because it was given in the question. So let's find out the vertical angle of elevation. So this is now perpendicular, and that is base. I'm going to use tangent theta one more time. बेटा लेफ्ट पे नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ए के ऊपर है, लेकिन 3D है तो इसीलिए मैंने वो डॉटेड लाइन लगाई। आप ये अज्यूम करो कि ये ए के ऊपर है, ठीक है, समझ आई? ये ए के बिल्कुल ऊपर है। लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, look at this pencil please everybody. This is, let's suppose, A and the top is X. Okay, I cannot draw 3D like this on a paper. मैं पेपर के ऊपर इस तरह नहीं बना सकता। सो आपने यहाँ से समझना है बेटा। एक्स ए के साथ कैसे आया अभी समझाता हूँ, जरा एक मिनट, जरा मुझे ये क्वेश्चन खत्म करने दो पहले। tangent theta, so it would be tangent inverse of perpendicular 20.87 and the base is 86.1. ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो शिफ्ट एंड tangent inverse fraction 20.87 divided by 86.1, and the answer is 13.62. So the final answer would be 13.6 degrees, 1 decimal place. अब सब जरा सुन लें, जिनको समझ नहीं आई तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर कर लें। वो क्या कह रहे हैं, एग्जामिनर ने क्या कहा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पे जरा गौर करें जी। मैं जरा पूरा डिस्प्ले दे दूं आप लोगों को। ओके, नाउ यहाँ पे जरा प्लीज जरा सब अंडरस्टैंड करें। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर सेइंग टू यू दैट अ पॉइंट एक्स इज एट द टॉप ऑफ वर्टिकल मास्ट ए। इसका मतलब है कि पॉइंट एक्स जो है ना, इसके ऊपर टॉप पर है। एग्री? तो जब इसके ऊपर टॉप पर है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर टॉप पर है, तो वो यहाँ पे कोई एक एंगल बनाएगा, और उस एंगल के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक्स फ्रॉम बी इज 7। इसका मतलब है कि बी पे खड़ा हो जाऊं, तो अगर मैं मास्ट को देखता हूं सामने एक्स पे, तो यहाँ से आई हैव टू मूव माई हेड 7 डिग्रीज अपवर्ड्स। तो इसीलिए मैंने इस बात को समझने के लिए ए बी लाइन ड्रॉ की है।
ए के ऊपर मैंने एक्स को प्लांट किया और मैंने यहाँ पे 7 डिग्री का एंगल लगाया। इसकी मदद से यमुना मैंने सामने हाइट ऑफ द मास्ट निकाली है कि मास्ट कितना ऊंचा लगा हुआ है, मतलब ये कोई भी पोल हो सकता है, ये कितना ऊपर लगा हुआ है, मैंने ये निकाला है थोड़ा सा। तो हाइट ऑफ द मास्ट मैंने यहाँ पे टेंजेंट थीटा से निकाली है विच इज 20.87। अब वही वो कहता था calculate the angle of elevation of x from D. He is saying that now stand at D and find the height of the mast which is vertically above A. तो इसका मतलब है कि ये A के ऊपर है बिल्कुल, right from the very top. So it means that तो मैं इसको ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता था, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से ड्रॉ किया ताकि मुझे समझ आ जाए। तो दिस इज ए एक्स, तो ये ए एक्स आपके पास 20.87 आई थी, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है क्वेश्चन में विच इज 86.1। हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, मतलब अगर मैं डी पे खड़ा हो जाऊं खुद लाइक दिस, तो मुझे मास्ट को देखने के लिए आई हैव टू मूव माय हेड अप। सो हाउ मच हेड अप? दिस इज 13.6 डिग्रीज ओनली। आई होप यू गॉट इट। जिसको समझ नहीं आई वो जाके एक दफा दोबारा रिकॉर्डिंग में जाके इसको जरूर देखे, और अगर किसी को और को समझ नहीं आई तो क्वेश्चन सर पूछ। आई होप मैंने 2 दफा एक्सप्लेन कर दिया। यस सर आपने क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करने के लिए एक्स लिखा ना उस तरफ, जी बिल्कुल, वैसे वो तो एक्स अपनी एक्चुअली एक्स जो पोजीशन है पे ना, है। एक्स जो है ना वो ए के ऊपर ओवरलैपिंग पोजीशन में है, मतलब ये पेंसिल के नीचे देखो, ये पेंसिल नजर आ रही है सामने आपको कैमरे में मेरे? जी सर। तो देखें कैमरे में, देखिए ये ए ये जो नीचे पेंसिल का जो बॉटम है ना, ये पेंसिल का बॉटम ए है, और ये जो पेंसिल का टॉप है ना ये एक्स है। अब वो मैं इसको 2D पेपर पे नहीं बना सकता, अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम लोग वो यस 3D बनाने के लिए ना, हम या तो उसको इस साइड पे लेटाएंगे या उसको इस साइड पे लेटाएंगे। ओके यस सर। चलें, दैट्स गुड। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नो ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वेक्टर्स। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो काइंडली गौर से सुने जरा प्लीज। Vector is easy topic of syllabus. It's not difficult at all. So kindly please pay attention. Arum, F is 6 and 1. That's the point. And G is -2 and 4. They say that G to H vector is given. Okay. So G to H vector is 1 left and 8 down and 8 steps towards down. It means that what? It means that what? Let's suppose this is my point G and this is my point H. Let's suppose I have the moment available. Point G is -2 and 4. Now what I'm going to do is I am standing here. I want to travel till H. Agree? Because vector of H is G to H is given. So because the examiner is asking you to find out the magnitude of FH, so you need what? You need H coordinate. So what I'm going to do is I'm going to find H now. So what I'm going to do is everybody, I can see one thing that Mr. A, which is me, I have to take one jump towards left because on x-axis, आपको नजर आ रहा है बेटा यमुना, on x-axis the x coordinate is -2. Agree? यस One, इधर मैं इंग्लिश में लिख के बताता हूँ, 1 left from -2 is -3. So the x coordinate of h is -3. Do you agree with me or not? Yes or no? यस Now I am standing at y-axis at 4. So what I have to do, I have to go 8 down from -4. So 8 down from 8 down from minus 8 down from +4 is, if you are at +4 and you're going 8 down, so that would be -4. Agree or not? अगर आप +4 पर हैं और you are going 8 down, so the answer would be -4. So the coordinate of h would be -3 and -4. Any problem बेटा? सबको समझ आई है कि नहीं? बेटा ये वही पेपर है जो हम लोग कल कर रहे थे तैयबा, और ये इसके 2 क्वेश्चन रह गए थे लास्ट 2, तो इसीलिए आज का पेपर स्टार्ट करने से पहले जरा इसको खत्म कर रहा हूँ। दिस इज ओ लेवल्स पेपर, मई जून 23, ये मैंने ग्रुप में भेजा था। ओके, एच का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जरा यहाँ पे देखें जरा, जी टू एच मैंने ज्वाइन कर दिया जरा समझने के लिए। एग्जामिनर कह रहा है कि जनाब अली मुझे एफ एच वैक्टर का मैग्नीट्यूड दो, तो एफ एच वैक्टर तो निकालो पहले। सो वैक्टर निकालने के लिए मेरा बेटा यहाँ पे देखें जरा यमुना, ये एफ पॉइंट है। एग्री? अब यस मैं हूँ मिस्टर ए जो है वो एफ पे खड़ा है। एग्री? और एफ टू एच की मूवमेंट चाहिए मुझे। अब मैं एच एफ पे खड़ा हूँ, एफ आई वांट टू गो टिल एच। सो यू कैन सी वन थिंग, Arom, you might struggle in vector, so that is the reason I'm calling your name. So you can see that मेरा बेटा ये this is 402422 में June 23।
ये ओ लेवल्स वालों का पेपर है, ये जो हम लोग कल की क्लास में, परसों की क्लास में हमने स्टार्ट किया था, हमें 2 दिन लग गए हैं इस पेपर को खत्म करते हुए। ठीक है, आज इसका ये अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ओके। नाउ तो ये बात फोकस करो। अच्छा, अब मुझे एफ एच वैक्टर चाहिए, तभी मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। सो यू कैन सी दैट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट एफ, मैं एफ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -3 है। एक्स एक्सिस पे 6 जो है वो राइट साइड पे आता है और -3 ऑन द लेफ्ट साइड पे होता है। किसी को समझ नहीं आता तो बताता हूँ जरा। आपने ये देखना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 6 टू -3। So 6 to -3, I have to go towards something left. So I know that this is my x-axis. So बेटा यहाँ पे +6 है और यहाँ पे है -3. How much is the distance between them? देखो लॉजिक अप्लाई करो, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। 6 to -3 is how much left? It says 9 left. Agree or not? Yeah. Yes or no? तो मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिखता हूँ यमुना, it is 9 left. Any problem? No, sir. And 9 left, it means -9. Okay, अब now I am standing at 1. Now I am standing at 1. I have to go till -4. Now आपको पता है कि y एक्सिस जो होता है वो इस तरह होता है। अगर आप +1 पे खड़े हैं, दिस इज +1, और आपने जाना है -4 तक, सो +1 से -4 तक कितना डाउन है? 5 डाउन है कि नहीं? यस और नो? बेटा +1 से -4 तक इट इज 5 डाउन। एग्री? So Yes. my FH vector is, मेरे पास जो FH vector है which is -9 और -5, तो FH vector का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बेटा -9 का होल स्क्वायर भी जो होता है वो 81 आएगा प्लस में, और ये भी 25। तो 81 + 25 इज 86, 96, 106। एग्री और नॉट? So square root 106 is what? 10 point something. So Ramin, what is 10 point square root 106? So 10.295. 10.295. So I can write 10.3. तो आप आंसर लाइन पे लिख सकते हो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो हम लोग इसको लिख के देते हैं 10.3। अब एक क्विक से रिकैप देता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो काइंडली प्लीज जरा गौर करें जी। ठीक है, क्विक से रिकैप देता हूँ। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे पेपर में यहाँ तक जगह है और ये नीचे जगह क्यों खाली है? एग्जामिनर चाहता है कि आप कुछ मल्टीपल अप्रोचेस अप्लाई करो। ठीक है, सो अब यहाँ पे देख लें, f इज द .61, f इज द .61, मैंने ये ड्रॉ किया। फिर g इज द .-24, ये मैंने क्वेश्चन में ड्रॉ किया। फिर हमने यहाँ से देखा कि मेरे पास g to h का वेक्टर था। फिर एग्जामिनर कह रहा था कि एफ एच निकालो। अब एफ एच में कैसे निकालो, मेरे पास तो एच का कोऑर्डिनेट नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने आप को जी पे खड़ा किया और इस मूवमेंट को देखा। जी ने कहा कि एक लेफ्ट लो और 8 डाउन आ जाओ, तो मैंने क्या किया, -2 से जब एक लेफ्ट लिया तो -3 पे आया, और +4 से जब मैं 8 डाउन गया तो -4 पे आया। कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। अब मैं चाह रहा था एफ एच फाइंड करना, फिर मैंने अपने आप को खड़ा किया एफ पे। आई वॉज एट 6, फ्रॉम 6 to -3, this is from 6 to -3, this is 9 left, and from 1 to -4, this is definitely 5 down. I got my fh vector, मुझे fh वेक्टर मिला, मैंने उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के फॉर्मूले में डाला, विच इज स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये आपका x होता है, ये y होता है। 81 + 25 स्क्वायर रूट 106 आया, तो स्क्वायर रूट 106 जो है वो 10.3 के बराबर है। जी, आई होप क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पेपर में आ सकता है, तो इसीलिए बस वेक्टर्स में कुछ नहीं सीखना, हमेशा याद रखना है कि सरबासत को किसी पॉइंट पे खड़ा करना है और लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलें Yes. आगे चलते हैं। क्वेश्चन पार्ट बी, वेक्टर्स। अब मैंने कहा है ना कि वेक्टर आसान टॉपिक है, तो इसको आसान आसान ही समझना है, मुश्किल नहीं। सो काइंडली प्लीज पे अटेंशन। O to A, O to A is small a, ये small a है। O to B is small b, ओके जी। A to C is KB, A to C के बारे में हमें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये something B है। It means that A to C is parallel to OB, ये हमें पता लग गया है। ठीक है, क्योंकि it is something multiplied with B। ओके, ये हमें नहीं पता, हम इसको छोड़ देते हैं। फिर कहता है X is the point on OC such that O to X is m times of OC। हमें वो कहता है कि O to X is m times of OC, मतलब कि ये OC के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो OX आएगा हमारे पास। अब अंडरस्टैंड जरूर करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करें। कहता है
write OX, write OX in terms of M, K and B. Okay, O to X, O to X क्या है बेटा? O to X पे O जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और X जो है ना आपका ये एंडिंग पॉइंट है। बेटा रामीन, मुझे O to X चाहिए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. मुझे O to X चाहिए। मुझे O to X के लिए क्या ए बी की मदद लेनी चाहिए? क्या मुझे ए बी की मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, गुड जॉब। ओके, ए बी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मुझे मुझे ए एक्स की मदद लेनी चाहिए? नहीं नहीं, गुड जॉब। ओके, क्या मुझे इस रेशो की मदद लेनी चाहिए? सर नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब आप देखें जी, जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए सी, कि ए सी की वैल्यू है के बी। एनी प्रॉब्लम? यस और नो? हमें के का नहीं पता कि के क्या चीज है, वी डोंट नो दैट। एग्री? एग्री रामी? जी सर। कैन आई फाइंड आउट ओ सी? क्या मैं ओ टू सी को फाइंड कर सकता हूँ? जी सर। ओके, ओ टू सी होगा ए प्लस के बी। डू यू एग्री विद मी और नॉट? जी सर। ओके, अब ओ टू एक्स का रेशियो नहीं है हमारे पास रामीन, लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चन में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि ये पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया और ये सी हो गया। ठीक है रामीन? वो कह रहा जी। है वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ओ टू एक्स इज एम टाइम्स ऑफ ओ सी। एग्री? जी सर। Can I say that we are saying that O to X is M times of OC? Agree? जी। We don't know what OC is. हमें ये पता ही नहीं है कि OC है क्या चीज। Agree? जी सर। So can I say that O to C is O to A plus A to C? Can I say that? जी सर। Can I say that O to C it is equals to O to A is plus A and A to C is KB? जी सर। So can I say that O to X it is equals to M times of A plus KB? जी सर। So the examiner was asking find OX in terms of M, K, A and B. So do I have M, A, K and B in the answer? Is the result shown or not? कैसे किया? बहुत, मैंने कहा है ना कि वेक्टर एक इजी टॉपिक है, स्केरी लगता है लेकिन होता नहीं है। स्टार्टिंग और एंडिंग है। और रिपीट करता हूँ, जरा गौर से सुनना, ठीक है? जस्ट अ लिटिल ट्रिकी एंड स्केरी, या यू कैन से वन थिंग, स्केरी लगता है लेकिन होता नहीं है। अब जरा अंडरस्टैंड करो। अच्छा, एग्जामिनर क्या मांग रहा है आपसे? ठीक है, एग्जामिनर कहता है राइट ओ एक्स, हमें ओ एक्स को राइट करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम, के, ए एंड बी। अच्छा, मेरे पास क्या था? मुझे तो यहाँ पे इसने कहा था कि ओ सी है, मैंने ओ सी को ड्रॉ किया। एग्जामिनर गिव मी द कंडीशन दैट ओ टू एक्स इट इज एम टाइम्स ऑफ ओ सी। ओके, आई गॉट द आइडिया। So then I had the idea that okay, OC is what? OC is OA plus AC. That is what I wrote here. OA is plus A and AC is what? It is plus KB. Obviously, I got OC which is A plus KB. तो मैंने यहाँ पे M की जगह पर OC की वैल्यू डाल दी, which is OX is equals to M times of A plus KB. तो मेरे पास OX का आंसर आ गया। और 2 मार्क का क्वेश्चन था, 200 का नहीं। तो याद रखें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस अंडरस्टैंडिंग की दे रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई है। जिसको समझ नहीं आई वो रिकॉर्डिंग में जाकर दोबारा देखेगा फिर, ताकि हम लोग ए प्लस के बी, दैट्स इट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अच्छा, बी एक्स किसे कहता है? वो एग्जामिनर कहता है बी एक्स। रामीन जी। बेटा बी एक्स ही होगा, क्या? बी जी एक्स ही सर। होगा। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एग्री? जी। जी। Px is given in the question. Find the value of k. आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So बेटा, Ramin, if you know this already, that I know that my ox agree, my ox it is equals to
m times of a plus kb. Agree? Yes or जी no? जी जी यस और नो? हमें ये इसका भी आइडिया क्लियर है कि हमारा ये चीज इसके बराबर है। हमारे पास बी एक्स है, हमें निकालनी है के की वैल्यू। अब के की वैल्यू निकालने के लिए ना हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, और वो स्ट्रगल हमने करनी नहीं है। बस कॉमन सेंस की बात याद रखें आप, ठीक है? अब याद रखें आप, हमारे पास बी एक्स मौजूद है। वी आर गोइंग टू यूज, यू आर गोइंग टू यूज दिस इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन। ये बात बीच में छुपी होती है और बच्चे डरते हैं कि हम क्या करें अब इसका, ठीक है? अब हमने वैल्यूज को पुट करना है, जी बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब हम o टू x को b टू x को इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं b टू x वेक्टर फाइंड करूंगा। तो b टू x के लिए b टू o प्लस o x होगा। सो ये लेट्स यूज दिस। सो b टू x वेक्टर इट इज इक्वल्स टू b टू o plus o to x. b to x is given in the question, which is 3 by 5 of a minus 1 over 2 of b. b to o is negative b plus ox is not given. ox is above, ox हमारे पास ऊपर लिखा है, which is what? which is what? ox हमारे पास ऊपर लिखा है, वो क्या है हमारे पास? बेटा आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, कौन बोल रहा था? थोड़ा सा तेज बोलो। Sir, m multiply by a plus k. Yes, it is m multiply with a plus kb. Okay. अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है चीजों को, ठीक है? तो प्लीज बी केयरफुल। सो लेट्स डू इट। So 3 by 5a minus 1 over 2b is equals to minus b plus ma plus kb. Ramin, it means that left hand side पे a is equals to a and b is equals to b on the right side. Agree or not? जी सर, ये एम ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एम के बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना? m, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। ये हो गया बेटा m k b. Agree or not? जी Okay. So everybody, can I say that this 3 by 5 of a, it is equals to ma? Can I say that? Dawood, can I say that or not? जी sir. All right. So we got the idea that 3 by 5a, it is equals to ma. Arom, beta, can I cancel a like this? Have I got the value of m or not? M is equals to 3 by 5. जी सर। Okay, I got the value of m, which is not the requirement of the question. Requirement of the question is find the value of kb. Okay. So at the same time, mera bacha, can I say that this minus 1 by 2b, it is equals to minus b and plus m plus kb? Can I say that or not? That this left side has b, which is equivalent to the right side b's. Agree? So can I write minus 1 over 2b is equals to minus b plus m kb? लिख सकता हूँ बेटा रामीन के नहीं? सर रामीन जी, यार यस। आपने 3/5 तो को इक्वल्स टू ma क्यों लिया? देखें जी, ये आपको खुशी नजर आ रहा है कि m के साथ भी a लगा हुआ है, जी जी और आपको नजर आ रहा है कि 3 by 5 के साथ भी a लगा हुआ है। जी इसका मतलब है कि ये a इसी से आया होगा ना, जी तो इसीलिए मैंने कहा कि 3 by 5 a इज इक्वल टू एम ए। ओके, ठीक। अब लेफ्ट साइड पे माइनस 1 over 2 b है, और यहाँ पे ये भी b है और ये भी b है, तो मुझे पता है कि ये कैसे आया है, ये लेफ्ट साइड वाला कैसे आया है, इन दोनों की वजह से आया है, इसीलिए इन दोनों को इक्वल किया सर ये ना। -1/2b तो सिर्फ m टाइम्स ऑफ के बी के इक्वल नहीं होगा? क्यों? ये माइनस बी फिर कहाँ, मैं कहाँ लेके जाऊं, मुझे बताओ ना। माइनस बी को मैं किसके इक्विवेलेंट पुट करूंगा? बी को सॉल्व करने के बाद आया होगा। एग्री? बी कभी भी ए को सॉल्व करने के बाद नहीं आ सकता। सो रामीन, माइनस 1 over 2b, अगर बेटा मैं यहाँ पे b कॉमन ले लूं तो -1 प्लस m k हो जाएगा कि नहीं रामीन? जी सर, हो जाएगा। तो क्या मैं b कैंसिल कर सकता हूँ? जी ओके, सो -1 over 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस, बेटा आपके पास तो m की वैल्यू भी है। m की वैल्यू क्या है बेटा? 3 by 5 है। यस और नो? जी सर। सो -1 जो है बेटा वो राइट साइड पे आएगा। सो -1 over 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 by 5 k। हमें अब k को सब्जेक्ट बनाना है जस्ट, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म।
और पेपर भी हो गया खत्म। सो -1/2 होता है बेटा -0.5। अगर पॉइंट में आसानी लगती है तो पॉइंट में कर लेना, कोई मसला नहीं। -0.5 + 1 is equals to 3/5k। -0.5 + 1 is +0.5 is equals to 3/5k। 5 को मल्टीप्लाई करो 0.5 के साथ, तो ये 0.5 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू 3k। तो 0.5 जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 2.5 आता है। मैं विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ। तो डिवाइड बाय 3 करते हैं अब। तो 2.5 डिवाइड बाय 3 कितना आता है बेटा? k की वैल्यू कितनी आएगी जरा बता दो। 2.5 डिवाइड बाय 3 जी 0.83। 0.83। फ्रैक्शन में बता दो। और सर 5/6। जी जी 5/6 5/8 5/6 5/6। So the answer for k is 5/6। और पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.83 लिख सकते हैं। जी रामीन, क्लियर हो गया बेटा? सर मुझे ये यहाँ से अब देखें जी, जरा मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि एक दिन में पूरा पेपर खत्म हो, क्वेश्चन ऐसा खत्म हो कि वो टॉपिक इजी हो जाए। अब जरा गौर से देख लें प्लीज रामीन। पहला पार्ट तो आई होप क्लियर है। दूसरे पार्ट में एग्जामिनर ने आपको ये दिया है, एग्री और नॉट? जी सर। इसका मतलब है हमें bx को यूज करना है, इसीलिए दिया है। एग्री? जी सर। मैंने कहा कि bx कैसे आया है? bx आया होगा b2o + ox से। एग्री और नॉट? जी तो मैंने यहाँ पे लिखा b2o + ox। तो bx की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी जो कि गिवन थी क्वेश्चन में। b2o हमारे पास है -b, आप डायग्राम में देख सकती हो b2o इज -b। और o2x हमारे पास ये पिछले पार्ट में आया था, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा आगे चलते हैं जी, साथ साथ यस यस बोलती जाएं। ओके, -b + ma + mkb, ये स्टेप आपको समझ आया? जी We said one thing that this a coefficient it is equal to this a coefficient। Agree or not? जी तो मैंने इसके लिए वर्किंग यहाँ पे की। मैंने कहा कि 3/5a ma के बराबर है, तो मैंने a को a से काटा तो 3/5 आ गया m की वैल्यू। इज दिस क्लियर? जी सर। अब m की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है कि b वाले एक दूसरे के बराबर हैं। एग्री? जी सर। लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व आंसर है, वो राइट हैंड साइड के सिंप्लीफाई करने के बाद आया होगा। एग्री? जी का मतलब है कि अगर मेरे पास bx ना होता रामीन, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते, तभी -1/2 आता कि नहीं? जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो -1/2b है, जी जी इसको आप सिर्फ के m टाइम्स ऑफ k b के इक्वल क्यों नहीं रख रहे, साथ आप -b भी लिख रहे हैं? अच्छा, वो क्यों लिख रहा हूँ उसके लिए उसका एक थोड़ा सा रीजन है, वो थोड़ा सा आप जरा अंडरस्टैंड जरूर करें। क्योंकि यहाँ पे b के साथ और कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब याद रखें, ये -1/2b जो आया है, ये आंसर है आपके पास रामीन। दिस इज योर आंसर। ये गिवन था क्वेश्चन में, आंसर वाज गिवन, वी वर फाइंडिंग द क्वेश्चन, समथिंग इन द क्वेश्चन। ओके, जी तो क्या हुआ, मुझे पता है कि लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये -1b है, और यहाँ पे मैं m की वैल्यू और k की वैल्यू डाल देता हूँ, और इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तभी मेरे पास आंसर में ये आएगा कि नहीं? जी अगर सर आएगा। कॉमन सेंस लगाएं, यहाँ पे b का, यहाँ पे वेरिएबल b है, ये भी वेरिएबल b है, दोनों वेरिएबल b आपस में प्लस माइनस होंगे तभी ये आएगा। इसीलिए दिस येलो इज दे आर इक्वल टू ईच अदर, इसीलिए मैंने लिखा है -1/2b, ये बराबर है -b + mkb के। फिर मैंने यहाँ पे b को कॉमन लिया, b को मैं बाहर ले गया और मैंने b की कटिंग कर दी। जब b गायब हो गया क्वेश्चन में से, मैंने इसमें m पुट कर दिया जो कि हमने पहले पार्ट में फाइंड किया था, और हमने इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकाल ली। गौरे, जी सर। आप के की वैल्यू आ गई है ना रामीन? जी सर आगे। हम क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। और वो क्या है, आपके पास के की वैल्यू भी आ गई, आपके पास एम की वैल्यू भी आ गई। एग्री? जी सर। आप क्वेश्चन में आप यहाँ पे बी एक्स को छोड़ दें। आप लेट्स सपोज अपनी क्यूरी सॉल्व करने के लिए राइट बी एक्स इज इक्वल टू बी ओ + ओ एक्स इंस्टेड ऑफ एम एंड इंस्टेड ऑफ के, पुट देयर वैल्यूज, एंड इफ यू डू नॉट गेट दिस आंसर, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, जी सर। आई होप आई एम क्लियर। चलें जी जी आगे। पेपर हुआ खत्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर सेकंड पेपर इज
IGCSE 058042 October November 2023, 2 hours 30 minutes. Difficulty of the paper is amazing. So let's see what questions we are gonna do today. So please open आप IGCSE. पेपर शेयर कर सकते हैं प्लीज? बेटा पेपर ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, ठीक है, पेपर ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, ये कल शेयर किया था, देख लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इजी टॉपिक। पेपर के अंदर इन योर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 8 मार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन, 7 मार्क्स वेक्टर्स, 15 marks they are gonna come from transformation and vectors chapter. If you don't know the chapter, you will lose 15 to 20 marks in your total paper out of 200. Keep this thing in mind. So transformation is in front of you, x-axis, y-axis, coordinate grid is drawn. Translate triangle T. Translate का मतलब होता है slide. Triangle T by -7 means 7 left, 7 left and 1 up, because it is +1. Select a point of your choice. Okay, so now drag this point 7 towards left. 1 2 3 4 5 6 7 towards left, and now 1 down. So this point is now translated here. The translation is what? Just a sliding. So every point will be translated the same way. Translate one point and then draw the shape. Remember one thing. Most of the students, they do one thing. What they do, they just simply draw the shape freehand. No, आपने freehand draw नहीं करनी. आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जो Sir? क्वेश्चन है वो चेक होता है स्केल डायग्राम से, तो आपने स्केल रूलर के जरिए करना है। जी बेटा। सर ये -7 लेफ्ट है और 1 अप नहीं होगा? हाँ सॉरी, 1 अप है, थैंक यू। तो -7 एंड दिस इज 1 अप। ओके, थैंक यू यमुना, गुड जॉब। इसका मतलब आपको आ गया। ओके, नाउ I'm going to draw the rest of the triangle. It should be 4 boxes towards this side and 2 boxes towards up. And let me just connect the point. And this is my requirement number 1. So I'm done with this. I got 2 marks happily from the examiner. Describe single transformation that maps K onto T. Okay, so we have to name this triangle K. So K onto T is also translation. It is also translation by vector with the same numbers but different signs. So it should be +7 and -1 now. Okay, आप K से T पे आओगे तो ये होगा, और वहां से इधर आओगे तो इधर T से K पे जाओगे तो 7 लेफ्ट है, K से T पे आओगे तो 7 राइट है। जी समझ आ रहा है सबको कि नहीं? रानिया, जोया, निखिल, जवेरिया, हादी। जी सर, आ रहा है समझ। गुड जॉब, गुड जॉब। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्ट ट्राइंगल T। अच्छा, ये आप मैंने लिख दिया ना। अब ऐसा है ना कि येलो लाइन में मिटा दूंगा, ठीक है, येलो लाइन मिटा दूंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में और भी काम करने हैं, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्ट ट्राइंगल T in the line y is equals to 4. बेटा y is equals to 4 is +4. This is your horizontal line and this is your mirror. So Simon, I'm going to reflect the shape. So this point is on mirror, so it will stay at the mirror. Agree? So this point is 2 boxes away from the mirror. Agree? So this point will go 2 boxes away from the mirror. This point is also 2 boxes away from the mirror. So this point will go upwards like this. Now join the line, but you have to draw with the help of ruler. So now you can see one thing, that this is the reflection of triangle T. Can you see that sign? So this is part B. तो ये आपका part B हो गया। जी हादी। जी सर। Hadi, you're saying something? हाँ। Okay. Rotate triangle T. Triangle T को rotate करना है through 90 degrees clockwise about the origin. तो L technique याद रखें, draw L, आपने L draw करना है 90 degree. So आपने triangle T को rotate करना है 90 degree clockwise and from origin. So let's do that. So it is my origin. So I'm going to rotate point A. Let's suppose this is point A. So I'm connecting with the center. So I'm going to draw L. तो L कैसे draw करते हैं? लेंथ इतनी होनी चाहिए लेकिन 90 डिग्री पे लाइन ऐसे लेके जानी है। So this is L. ये हो गया बेटा आपका L। जवेरिया इधर इसको देखें बेटा, ये 90 डिग्रीज भी बन गया है और इन दोनों की लेंथ भी सेम है।
और क्लॉकवाइज में ये ए नीचे आ जाएगा, but this is my point A prime. So now you can see one thing. Now you can see one thing, Javeria, that this is point B. Let's say A to B is a horizontal line. So A to A prime to B prime would be a vertical line. 4 boxes towards down, B prime. Okay, let's suppose this is point C. So B to C is 2 boxes upwards. So B to C will be now a horizontal line. So that is AC, AB. This is 90 degree. This is C prime. Okay, so you can see that the triangle is rotated 180 degrees clockwise from the center using this L technique. Proceeding. Enlarge triangle T by the scale factor -1/2. -1/2 means the shape will be flipped and halved. And the center is 0, 0. And the center is 0, 0. So step one, mark center, and the center is 0, 0, 0, 0, and name it Z. Name it Z. So center is already marked. I'm gonna mark it here Z. Okay. So बेटा जिसने मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ी वो एक क्वेश्चन देखें, एनलार्जमेंट अभी सीख जाओगे। सेंटर मार्क किया, उसको Z का नेम दे दें। नाउ Z to A वेक्टर, तो Z to A वेक्टर क्या होगा? Z से गाड़ी स्टार्ट करें और A तक जाएं। So Z to A is 2 right 2 up. So it is 2 right 2 up. Now multiply with -1/2. -1/2 multiply with 2 would be -1. So Z to A prime would be -1 and -1. So let's do that. So now -1 means 1 left and 1 down. So Z पे खड़े होके 1 लेफ्ट और 1 डाउन, तो ये हो गया बेटा आपका A प्राइम। ये कैसे लगाया है बेटा? Z to A प्राइम, so 1 लेफ्ट 1 डाउन। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो दूसरा पॉइंट लगाता हूँ, वो समझ लें अभी, ठीक है। Z to B, मैं एक एक करके बता दूंगा। Z to B, Z से B पे जा रहा हूँ। देखो भाई, Z to B is 6 right 2 up. ओके, जरा लिखने दें, 6 right, it is 6 right and 2 up. Now multiply with -1/2 because scale factor is -1/2. So half of 6 is 3, so it would be -3. Half of 2 would be 1, it would be -1 because it is multiplied with a -1/2. So Z to B prime would be like that, ठीक है? So now -3 means 3 left, -1 means 1 down. So let's do that from Z now. So Z पे खड़े होके 3 लेफ्ट और 1 डाउन इधर आएगा, तो हम लोग अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 3 लेफ्ट और 1 डाउन। सो दिस इज योर बी प्राइम। अब याद रखें, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ए और बी ने अपनी जगह बदली है, तो सी भी नीचे आएगा। सी नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, अब आपने इस चीज को अंडरस्टैंड जरूर करना है। तो बी टू सी जो है वो, अब बी तो ऑटोमेटिकली इधर आया है, तो सी वर्टिकली ऊपर नहीं हो सकता इसके, वो नीचे होगा इसके, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, लेकिन हम अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं जो वर्किंग हम कर रहे हैं। Z to C, तो यमुना Z to C क्या होगा, जरा देख लो बेटा। Z to C is 6 right and 4 up, agree? तो 6 right and 4 up, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो Z to C प्राइम क्या होगा आपके पास बेटा? -3 और -2 होगा कि नहीं? सो दिस इज Yes. -3 and -2, तो -3 and -2 यहाँ पे आता है, तो ये पॉइंट हुआ मेरा C प्राइम। सो हसन बेटा, ये ट्राइंगल इनलार्ज हुआ। इनलार्ज का मतलब है जूम इन या जूम आउट, साइज इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। देखें यहाँ पे साइज डिक्रीज हुआ है और शेप फ्लिप भी हुई है, क्योंकि एनलार्जमेंट जो थी नेगेटिव स्केल फैक्टर था। सो यहाँ पे हो गई हमारी एनलार्जमेंट एंड वी हैव टू लेबल द शेप, लेबल द इमेज P। तो हमने इसको इमेज P बनाना है। ये लाइन टेढ़ी लगी हुई है तो इसको मैं सीधा कर दूंगा, ठीक है। इसको इमेज P करना है। ओके, देन दे आर सेइंग सर बट हाउ टू फाइंड सेंटर, इन सम क्वेश्चन दे आस्क टू फाइंड सेंटर। बेटा एनलार्जमेंट का सेंटर निकालना हो तो यू हैव टू यूज योर रूलर, आपने रूलर का इस्तेमाल करना है। फाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, आपने कनेक्ट करना है करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को और वहां पे आपका सेंटर निकल आएगा। रोटेशन का सेंटर निकालने के लिए आपने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिलाना है 180 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री के लिए आपने एल टेक्निक अप्लाई करनी है, दैट्स इट। ओके, अगर ये सीखना चाहते हो, कोर्स अपलोड किया हुआ है, रोटेशन की वीडियो में जाओ, रोटेशन का सेंटर निकालना सीखो। एनलार्जमेंट की वीडियो में जाओ और एनलार्जमेंट का सेंटर सीख लो। क्वेश्चन आया तो कर भी दूंगा आगे, ठीक है। चलें जी, ओके,
लुक एट द लास्ट पार्ट बेटा, देखिए कितने मार्क्स हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 and 9 + 2 is 11। पहले बहुत लंबा आता था क्योंकि पेपर 130 मार्क्स का था, एग्जामिनर को एक एक क्वेश्चन दो दो दफा पूछना पड़ रहा है। देखो क्योंकि 130 मार्क्स कहाँ से पूरे करे। ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्ट किया है, पहले उसने कहा ये ट्रांसलेशन है, वो कहता अच्छा ये उसकी ट्रांसलेशन है, तो 2 दफा तो उसने ट्रांसलेशन पूछा है। अब 2 दफा नीचे एनलार्जमेंट भी पूछ लिया, देख लो। कहते हैं डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P onto T। अच्छा आदि बेटा P onto T ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है? व्हाट इज द नेम? यस इट इज एनलार्जमेंट, इट इज एनलार्जमेंट, इट इज एनलार्जमेंट। स्केल फैक्टर हादी क्या होगा? अब P onto T स्केल फैक्टर क्या होगा? वहां से यहां तक तो -1/2 था, तो P से T पे क्या होगा? What would be the scale factor from P to T? Anyone? माइक ऑन करके बताएं प्लीज। सर -2। नहीं 1 1 क्यों कह रही हो बेटा? रामीन -2। रामीन आपने ठीक बोला है। और ये यमुना 1, 1 का क्या मतलब है? सेंटर हम लोगों ने इनलार्जमेंट का फाइंड नहीं करना, सेंटर ऑफ द इनलार्जमेंट वही होगा जो ओरिजिन है। अब देखें जी, टी से पी पे आ रहे हो, ट्राइंगल हाफ हो रहा है और माइनस में भी है तो -1/2। लेकिन अगर आप पी से टी पे जा रहे हो तो ट्राइंगल डबल हो रहा है तो -2। सो द सेंटर इज स्केल फैक्टर -2। सेंटर मैटर नहीं करता बिकॉज सेंटर रिमेन सेम, तो सेंटर इज ऑलवेज सेम, तो दैट इज द रीजन सेंटर लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप लिख सकते हो सेंटर 0 0, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पी टू टी और टी टू पी एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, तो जरा आसानी से समझे जरा। जिसको नहीं आता आराम से गौर से सुने। डेजी रिकॉर्ड्स हर 50 होमवर्क मार्क्स। द टेबल शोज द रिजल्ट्स। होमवर्क मार्क 15, 16, 17, 18, 19, 20. Frequency is 1, 3, 19, 11, 10 and 6. It means that this is your X and that is your F. Okay. Write down the range. Range is highest mark minus lowest mark. जी, हाईएस्ट मार्क्स है 20, लोएस्ट मार्क्स है 15, 20 - 15 is 5। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्या कहते हैं 19 - 1 कर देंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं, माइनस फ्रीक्वेंसी को नहीं यूज करते। ठीक है, राइट डाउन द मोड। लुक एट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा याद रखें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एरो लगाना है। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 19, एरो लगाएं, 17 इज द आंसर। ओके, find the median. Okay, 50 students are there. N is equals to 50. 50 is an even number. 50 divided by 2 is 25th student. So 25th student is where? So we have to find out cumulative frequency. 1. 1 plus 3 is 4. 4 plus 19 is 23. 23 plus 11 is 30, 34. 34 plus 10 is 44. 44 plus 6 is 50. Cumulative frequency is fine. My 50th student, 25th student is here, not in the class before. So my answer is 18. So that is what my answer is, 18. Okay, calculate the mean. Mean निकालने के लिए formula है summation fx divided by summation f. So summation fx divided by summation f. Total there are 50 students. Fx means 15 times 1 plus 16 times 3 plus 17 times 19, calculator please, plus 18 times 11 plus 19 times 10 plus 20 times 6. Okay, चलें जी, कैलकुलेटर निकालें बेटा। 15 times 1 is 15, 6 3s 16 3s are 48, 17 times 19 कितना आता है बेटा, जरा करके बताइएगा। 323। 323 plus 18 times 11 is 198. 198। 19 times 10 is 190 and 20 times 6 is 120 divided by 50। बेटा सबको ऐड करें जरा और डिवाइड करें 50 का आंसर बता दें बस। 17.88। The 17.88 is the answer। 3 marks, 1 mark, 1 mark, 1 mark, 3 marks। Okay, look at point B. Part B. Part B is stem and leaf diagram. Included in O level syllabus and IGCSE। Sorry, IGCSE में है, O levels में नहीं। लेकिन O levels वालों इसको सीख लो यार, हो सकता है कि कोई, मुझे शक आता है कि ये पेपर में दे ना दे आपके। ठीक है,
क्योंकि उधर लिखा नहीं है कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम नहीं है, ठीक है। वो आईजी वालों में गिवन है, लेकिन ओ लेवल्स में स्टेम एंड लीफ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी सीख लो, आसान है, सर कुछ आप मुश्किल। पिछला क्वेश्चन दिखा सकते हैं प्लीज, मैं सोल्यूशन कॉपी कर रहा था। ओके, आप इतनी देर, ये मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। देखें जी, एक चीज अंडरस्टैंड करें, स्टेम एंड लीफ डायग्राम सीख लें तो बेहतर है, अगर वो सीख लेंगे तो उसका बेनिफिट आप ही को है, ठीक है। सो चलें जी आगे चलते हैं। ओके, कहता है एग्जामिनर स्टेम एंड लीफ डायग्राम में की प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, तो आपका जो की है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। की आपने सबसे पहले देखना है, वो कह रहा है कि 2/5 रिप्रेजेंट 25। ओके, सो हेयर इट इज 1। सो 1 वालों को पहले जरा सर्कल करें, आई हैव ओनली 18, so I can write here 18, 18 means 18। नाउ 1 की तो गेम खत्म हो गई, अब मैं 1 का सर्कल खत्म कर देता हूँ। नाउ सर्कल 2 वाले, 2 वालों को सर्कल करते हैं, तो 2 वालों को सर्कल करें, 21 है, 25 है, 20 है, 21 है, 22 है, 21 है, 20 है। स्टार्टिंग 1 इज क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 20, और 20 कितनी दफा है, 2 दफा। फिर 21 है, 21 भी 2 दफा है, 3 दफा है 21। ओके, फिर 22 है एक बार क्रॉस, और फिर 25 है एक बार, ठीक है जी। ये हो गए बेटा आपके 2 वाले की कहानी खत्म। अब हम उनको मिटाएंगे और हम लोग तीसरा सर्कल जो है वो 3 वाले लगा देंगे, जो बच गए हैं वो 30 हैं, तो 3 वाले हैं 30। 3 का मतलब होगा 33, और ये हो गया 34। अब जरा नंबर जरूर काउंट कर लो यार, नंबर जरूर काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टेस्ट थे, इसका मतलब है सारे नंबर हमने लगाए हैं, कोई नहीं छोड़ा, तो वी आर गुड टू गो। तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको नजर सर आएगा। हम कॉमास ऐड कर सकते हैं दरमियान में? कॉमर्स नहीं ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, कॉमर्स नहीं लगाते होते, ठीक है। इसमें हर ओके डिजिट का सर। मतलब सिंगल है, ठीक है, कॉमन नहीं लगाते इसमें। ओके, फाइंड द मीडियन। अच्छा जी, मीडियन कहते हैं मिडिल नंबर को, तो 11 इज n इज इक्वल टू 11, एग्री। हम ना, बेटा मेरी आवाज सुन रही हो, n इज इक्वल टू 11 and 11 is odd number, so 11 plus 1 divided by 2 is equals to 6th value, क्योंकि 11 plus 1 is 12। तो बेटा 6 नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये 1 है, ये 1 नहीं है, दिस इज 21। ओके, ओके बेटा, 6 वैल्यू इज 21। ये बच्चे अक्सर यहाँ पे मोस्ट कॉमन एरर है कि वहां पे लिखा होता है बच्चे 1 लिख देते हैं, 1 नहीं लिखना, 21। कहता है फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, नॉन कैलकुलेटर में कैसे करोगे, अब जरा सीख लो। इंटर क्वार्टाइल कहते हैं बेटा अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो बेटा आईजी वालों, अपर क्वार्टाइल होता है बेटा 3/4, जिसको 75% बोलते हैं, तो 3/4 ऑफ 11 क्या होगा, 33/4 होगा कि नहीं। अब 4 के टेबल में 32 आता है, 33 नहीं आता, ठीक है दाऊद, 4 8 32 होता है कि नहीं। जी सर होता है। तो मैं कहता हूँ कि दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, दिस इज 8 पॉइंट, समथिंग। so 8 point something value is which one, 8 point something value is which one, let's count from the first one. So 1 2 3 4 5 6 7 8, and 8 point something would be 30, yes or no, जी because 8 सर। value is 25, agree, जी सर। and 8 point something is what, 8 point something is 30। Okay, so upper quartile is 30। Now let's find out lower quartile। lower quartile क्या है, IG वालों से सुनो, lower quartile is 1/4 of 11। 11 को 4 पे डिवाइड करो, 4 के टेबल में 11 नहीं आता, 8 आता है, इसका मतलब है कि आंसर आएगा हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग, आएगा कि नहीं बेटा। 2 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग डेफिनेटली थर्ड वैल्यू की बात हो रही है, तो थर्ड वैल्यू 182020, तो मतलब थर्ड वैल्यू इज 20। थर्ड वैल्यू कौन सी है आपके पास, 20, तो 30 माइनस 20 कितना आता है दाऊद, इट इज 10, एग्री। यस सर। इट इज 10 जी। असफहान समझ आया बेटा, अयान समझ आया, हादी, जवेरिया, खुशी, मनाहिल, रानिया, तैमूर, तैयबा, उमर, जारिया, जोया, सब बच्चों, अली। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, द वैल्यू ऑफ प्रिया कार डिक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर। हर साल प्रिया की गाड़ी 10% डिक्रीज हो जाती है। द वैल्यू टुडे, आज की वैल्यू, मतलब मैं आज की डेट लिख के करता हूँ क्योंकि तुम लोग ये समझते नहीं। वैल्यू टुडे, आज क्या डेट है, 4 10 20 25, द वैल्यू टुडे इज 7695।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 1 ईयर, आज से 1 साल के बाद 4/10/26 पे कितनी वैल्यू होगी? तो बेटा आज की जो वैल्यू है वो 100% है, अगले साल जो वैल्यू होगी वो 90% होगी। एग्री और नॉट? यस और नो? ये समझ आया कि नहीं? आया इससे। हाँ, अभी भी नहीं आया बेटा तो अल्लाह समझाए। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7695 मल्टीप्लाई विद 90% is equals to 100% of x. 100% of x means x. So 7695 मल्टीप्लाई विद 90%, तो आपको पता है कि 7695 मल्टीप्लाई विद 90% डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और 90% का मतलब है 0.9। तो कर लें जी, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सर 6925.5 ओके रामीन, आपके पास पास पेपर प्रिंट आउट है ना, IGCSE का? ये वाला पेपर? सर आज नहीं है। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ बेटा। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कार 1 ईयर अगो। ओहो, अच्छा जी, आज 4/10/2025 को मेरी गाड़ी की वैल्यू है 7695। सॉरी, मेरी नहीं, प्रिया की, खफा ना हो जाए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कार 1 ईयर अगो, आज से 1 साल पहले। बेटा आज की डेट है ये, 1 साल पहले 2024 में कितनी होगी? वो x होगी। ओरिजिनल वाली, पुरानी वाली हमेशा 100% होती है, अब 100% इधर आएगा और 90% ऊपर जाएगा। जी क्लियर हो गया सबको कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 90% x is equals to 7695। रामीन, x is equals to 7695 divided by 90%, and divide by 90% का मतलब है बेटा 95/100 और 0.9। ठीक है जी, करें जी, क्या आ रहा है? सर इससे ज्यादा होगा। 8550 8000 550 550, 2 मार्क्स। ओके जी बेटा, ये परसेंटेजेस के क्वेश्चन ऐसे हैं ना, इनको गलत नहीं करना पेपर में यार। अगर पास भी करना है ना पेपर तो भी ये करना पड़ेगा, ठीक है? समझ आई कि नहीं? अच्छा आगे चलते हैं, पार्ट बी। अली इन्वेस्ट $600 एट अ रेट ऑफ 2% पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सर ने कहा था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100 होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अलीज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो अली की इन्वेस्टमेंट क्या है फाइनल? तो फाइनल अमाउंट क्या होगी? वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगी। लेट्स कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल 600, रेट इज 2%, सॉरी परसेंटेज का साइन ना लगाए, नीचे 100 लगा हुआ है, एंड टाइम इज 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। आसमान बचे, ये 2 0 कट जाएंगे, 6 2 12, 12 5 60 आता है। तो फाइनल कितना होगा? 600 इन्वेस्ट किए थे जमा 60 उसका इंटरेस्ट है, तो 600 प्लस 60 इज 660 इज द आंसर। अगर आपने 60 लिखा तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क फॉर दैट, ठीक है? आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नहीं, ठीक है? अगर आपने इसको आखिर में ऐड नहीं किया तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। इज दिस क्लियर? सर पार्ट 1 में डिवाइड बाय 100 किया, किधर डिवाइड बाय 100 की तरफ? थोड़ा माइक ऑन करो अपना, यमुना। सर मैं सिंपल ये कह रही हूँ लाइक 7695 को। जी सर। जी जी आप बोले। हाँ सर इसको मल्टीप्लाई तो कर दिया तो 100 और x को जो है वो क्या किया? मेरा बेटा जरा यमुना एक जवाब देना, 100% ऑफ यमुना क्या होगा? यमुना होगा कि नहीं? जी सर। तो 100% ऑफ एक्स भी एक्स ही होगा ना क्या? 100 मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, 100 100 कट जाएगा ना बस। ओह यस। ओके चलें जी, सारा इन्वेस्ट $500 एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? फाइनल अमाउंट विच इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R% पावर T। ओके, आर नहीं है, आर को फाइंड करना पड़ेगा, आर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये पेपर में आता है भाई, तो ये सीख लो भाई। अगर किसी ने सीखना नहीं है ना तो फिर फार्मूला हम में R/100 कर सकते हैं। R/100 कर सब, बिल्कुल कर लो यार, कोई मसला नहीं, एक ही बात है, ठीक है? आप R/100 कर लो, एक ही बात है, ठीक है? मैंने R% लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है? अब जरा देखें जी, आर को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स मेक आर फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? सो F इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R% पावर T।
फर्स्ट ऑफ ऑल p इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द ब्रैकेट, तो p यहाँ पे आएगा f डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू 1 प्लस r% पावर t। अब पावर t वहां पे है, तो पावर t देखो स्क्वायर जो होता है वो जब लेफ्ट साइड पे आता है तो स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो t है तो t जब यहाँ पे आएगा 1/t हो जाएगा, तो f बाई p होल पावर 1/t इज इक्वल टू 1 प्लस r%। अब +1 राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा तो -1, तो ये हो जाएगा f बाई p होल पावर 1/t -1 इज इक्वल टू r%। ये बन गया बेटा r% का फॉर्मूला। अब किसी क्वेश्चन में r मांगते हैं, किसी क्वेश्चन में r% मांगते हैं, अगर r% मांगे तो स्ट्रेट अवे यही फॉर्मूला लिख देना है एज इट इज। अगर वो r मांगे तो आपने आखिर में आंसर को 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और वो क्यों होगा अभी बताता हूँ। देख लो भाई, f डिवाइडेड बाई p पावर 1/t -1, ये हो गया जी हमारा फॉर्मूला। अब ये -1 जो है ना, इसका लिंक t के साथ नहीं है, ये बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सारे ने इन्वेस्टमेंट की है $500 की, मतलब आपके पास पी की वैल्यू जो है वो 500 है, टाइम जो है 12 ईयर्स है, एंड द वैल्यू ऑफ द सारा इन्वेस्टमेंट इज 601.35। तो इसका मतलब है कि उसकी जो वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना, फाइनल अमाउंट, वो 601.35 है, और करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट है, लेकिन यहाँ पर बाउंड लोअर बाउंड का क्वेश्चन नहीं है। ये उन्होंने कहा है कि ये इसके 35 के बाद भी कुछ था, इन्होंने उसको नियरेस्ट सेंट पर राउंड ऑफ किया है, ठीक है। अच्छा, r% इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें जी, फाइनल अमाउंट है बेटा 601.35, 500 प्रिंसिपल 1/12 -1। ओके, इस सारी चीज को कैलकुलेटर में कैसे डालते हैं, सब जरा मेरी स्क्रीन जरा गौर से देखो, मेरी स्क्रीन जरा गौर से देखो, ठीक है जी। मेक प्रेजेंटर, मेक एंटायर स्क्रीन। अच्छा बेटा, कल हमारी क्लास नहीं होगी क्योंकि मेरे 2 स्कूल्स हैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे कल फेयरवेल पार्टी है, और माशाल्लाह दोनों स्कूलों में एक ही दिन है, तो मैं कल की क्लास ले नहीं पाऊंगा। तो कल की क्लास के लिए मैं होमवर्क भेजूंगा, एक पेपर आप लोगों को, आप लोगों ने वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। और उसका वीडियो जो है मैं सैटरडे को लाइव कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स जी डू इट। सर। सर फ्रैक्शन, आपसे कहना था सर, आप वो स्टैट्स की प्लीज से भेज सकते हैं, वो पास्ट जी पेपर ना भेज प्रिपेयर दूंगा, एक पेपर बना के भेज देता हूँ। थैंक यू डिवाइडेड बाय सर। 500, ब्रैकेट को करें बंद, पावर में जाएं, पावर में ले लें फ्रैक्शन, ऊपर लिखे 1, नीचे लिख दें 12। अब इस राइट बटन को दबाएं ताकि ये ब्लिंकर नीचे आ जाए, -1। ओके, मेरे पास बेटा r% की वैल्यू आ रही है 0.015499। अब मुझे एग्जाम में कह रहा है कैलकुलेट r, नॉट r%। अब r% का क्या मतलब है, यमुना नीचे 100 होगा नीचे, यस और नो, यस सर, तो वहां पे 100 जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई सर। यस मल्टीप्लाई विद 100, तो आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये आ रहा है मेरे पास, r की वैल्यू आ रही है 1.5499। 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड ऑफ करता हूँ, तो 4 के बाद बेटा 9 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 1.55 इज द आंसर फाइनल। r की वैल्यू है 1.55। चेक करना चाहे ना तो दाऊद चेक कर सकते हैं, p की जगह पे 500 डालते हैं, ब्रैकेट 1 प्लस 1.55 लिखते हैं, r की जगह ब्रैकेट पावर लेते हैं 12 की। अगर आंसर 601 के करीब करीब आ गया ना, तो हमारा जवाब ठीक है। प्रेसिंग इक्वल्स टू, वही क्या हो गया, सर आपने सर वो परसेंट का साइन नहीं 8% था ना? डाला, आपने ओह सर यस, मैंने परसेंट का परसेंटेज साइन। का साइन नहीं डाला, थैंक यू। एक मिनट, मैं जरा परसेंटेज का साइन डालूं, शिफ्ट एंड परसेंटेज, यस 601.35। मैंने भी कहा इतना बड़ा जवाब क्यों आ गया, तो दिस इज 601.3535। देखो नियरेस्ट एंड पे राउंड करो तो वही वैल्यू आती है जो एग्जामिनर ने दी थी, और हकीकत बात है ये हसन यहाँ पे अब थोड़ा मोए मोए हुआ है। चलो भाई, आई थिंक सो कि आज के लिए इतना काफ़ी है। पार्ट डी जो है, चलो जी पार्ट डी कर लेते हैं यार, पार्ट डी कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। द मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 3% ई पर ईयर। बेटा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इज कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ईच डे वो 3% है, तो रेट जो है बेटा 3% है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का मतलब है f इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 -r% पावर t, यहाँ पे माइनस आ जाता है खाली फॉर्मूले में,
Find the overall percentage decrease at the end of 10 days. So let P is equals to 100. हम P को लेंगे 100 के बराबर के, लेट सपोज P वैल्यू 100 है, तो देखते हैं कि 10 दिन के बाद ये कितनी डिक्रीज होती है। तो F इज इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट 1 माइनस 3% एंड आफ्टर 10 डेज, तो ऊपर हम 10 लिख देंगे, ये एक एक दिन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे 100। रामीन सुन रही हो बेटा? जी। ब्रैकेट 1 माइनस 3%, ब्रैकेट बंद, ऊपर पावर में आ गया 10। अच्छा 3 के साथ परसेंटेज भूल गए हैं, शिफ्ट एंड परसेंटेज। सो द आंसर इज 73.74। 73.74। ओके, ओवरऑल डिक्रीज कितना हुआ है? ओवरऑल डिक्रीज कितना हुआ? 100 में से 73.74 को माइनस करें तो 100 माइनस आंसर इट इज 26.25। 26.25, तो 26.3 आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। क्यों मैंने डायरेक्ट लिख दिया है वो इसलिए क्योंकि 100 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि टोटल परसेंटेज भी 100 होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमना, चवेरिया अंडरस्टूड, मनाहिल, तैयबा, जोया अंडरस्टूड और नॉट? द रीजन आई टुक 100 वैल्यू बिकॉज आई नो दैट टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100, तो वो मुझे दोबारा परसेंटेज में बनाना नहीं पड़ा। आप 50 भी ले सकते थे, आप 200 भी ले सकते थे, लेकिन आखिर में परसेंटेज काउंट करना पड़ जाता। ठीक है। Find the number of whole days it takes until the mass of the substance is 1/2 of its original amount. तो बेटा 1/2 कितना होता है? 50। मतलब अगर 100 है तो P is equals to 100, तो फाइनल अमाउंट 50 आ जाए। तो याद रखें, आपको नंबर ऑफ डेज चाहिए, डेज जो हैं वो पावर में हैं, तो आपने इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। और वो कैसे होगा? F is equals to 100 ब्रैकेट 1 माइनस 3%। आई विल चेक, लेट सपोज ऊपर हमने 10 चेक किया था, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही थी 73.74। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको चेक करते हैं 20 के साथ। 20 के साथ ज़रा चेक करते हैं। लेट सपोज, अभी हमें नहीं पता कि आंसर क्या है, लेकिन हम इसको 20 के साथ चेक करते हैं। 100 1 माइनस 3%। रामीन आवाज आ रही है? ब्रैकेट पावर इज 20। एग्री? सर रामीन 20 पे भी 50, यस और नो? जी सर। तो लेट्स चेक 21 चेक करते हैं। तो एडिटिंग करें कैलकुलेटर में, 57 ओ 21 मैंने 18 लिख दिया गलती से। 21, it is 52.7 which is still not 1/2. Agree? Let's check 22 चेक करते हैं। एक दिन और बढ़ा दिया मैंने, अभी भी नहीं हुआ, ये 51.1 आ रहा है। 23 पे शायद आ जाए, या शायद इस पे भी ना आए। 23, सर हम F को 50 नहीं यस पुट हो कर गया। सकते? तो 1/2 F को हम क्या? सर 50 पुट कर लेते हैं, फिर एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नहीं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करते हैं? लॉगरिथम कोर्स में है नहीं, ठीक है, तो हम पावर ऑफ टी को नीचे नहीं ला सकते। अंडरस्टूड? जी सर। 49.6 which is less than 1/2, less than 1/2. हाँ Agree? सर, एक सवाल पूछना है। So the answer is 23. Yes, 23 days. जी बोले यार। सर आपसे पूछना है, जब पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरह, तो हम बस गेस करना स्टार्ट नहीं से नहीं, हो जाए? वो तो ट्रायल एंड एरर होता है, और ये हमेशा दो जगह पे आता है। आपको ट्रायल एंड एरर 2 जगह पे इस्तेमाल होगा। अक्सर वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ये है, बताओ कौन से नंबर ऑफ टाइम के ऊपर, टर्न के ऊपर ये आया होगा। एक प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होता है और दूसरा जी सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में। 2 जगह पे ट्रायल एंड एरर है, बाकी इसके अलावा नहीं। ठीक है जी।